Hello and hi everyone. Welcome back to my session. This is a session on geography. We are going to do geography of class 8. Bacha. For class 8, this is my very first session that we are going to do here. Okay. So, so we are. This was highly demanded that geography का आपको 8th standard का session चाहिए था. So this is for ICSE Geography 8th standard. It is presented by me, Simran Priya. Okay, moving ahead. Today's topic of discussion is chapter number 4. We are discussing from the middle school geography Frank EMU book, that is migration, and this is part A of this particular chapter. I have divided this chapter into several parts, and this is the very first part. Why I have divided this chapter into chunks? Because I want you to have a better understanding and do not want to hover around all the information at once. Okay. So now moving forward, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस माइग्रेशन चैप्टर में? पहले कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन होता क्या है और we will discuss इसके साथ साथ causes of migration. माइग्रेशन अगर कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन करते हैं, so at what circumstances do they migrate or what are the actual causes of migration? I would like to say hello to Dream Girl. Good evening. Thank you so much for joining in. Hello, Aksharaj. Hello, thank you so much, Bacha, all of you for joining in. Okay, now moving ahead, let us begin with our session. This is presented by me, Simran Priya, and let me give you a quick information about myself. So I have done my graduation and my masters from Delhi University. Currently, I'm teaching in an ICSE school, and this is my online venture where on your demands I bring up several educational topics, chapters, and also I bring out several subjects that I have a forte in, and I can explain it beautifully through a visual presentation. So moving ahead, good evening, Iti. Thank you so much, Bacha, for joining in. Now let's start this chapter, migration. That is chapter number 4 of your Frank EMU book. Now, what is the concept of migration? Now, migration means crossing of the boundary of a political or the administrative unit for a certain period of time. Now, then, if this is our India, okay, this is our India. So, अगर India, अब ये जो मैं outline बना रही हूँ, what is this? This is the boundary of India. ये जो मैं outline मैंने बनाया है, this is what? This is boundary of India. Here we then have Pakistan, here we have China, here we have Tibet, here we have Bangladesh. So ये क्या है? ये हमारी बाउंड्रीज है. जब कोई पर्सन बच्चा इस बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे की पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में चला जाता है या फिर इस बाउंड्री को छोड़ देता है एक कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, दैट पर्सन इज माइग्रेटिंग. चाहे वो यहाँ से उड़कर यूएस चले जाए या वो यहाँ से बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान चले जाए, तिब्बत चले जाए या बांग्लादेश चले जाए, कैसे भी सिनेरियो में दिस विल बी अ माइग्रेशन व्हेन अ पर्सन इज क्रॉसिंग ऑफ अ बाउंड्री. किसका बाउंड्री वो क्रॉस करेगा? किसी भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का. ना इंडिया का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो एक है, राइट? सो इसके बाउंड्री को क्रॉस करना इज नोन एज माइग्रेशन. नाउ पीपल who move in this manner are known as migrants. और जो लोग उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, the people are known as migrants. Now, like for example, if I am doing migration, I am leaving my country, my home country, and I am going to Bangladesh. So मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ से migrate करके बांग्लादेश जा रही हूँ और and I will be known as migrants. Okay, now moving ahead, millions of people have migrated to other countries in the recent years. हमने अभी आने वाले कुछ सालों में ये देखा है that there have been millions of people जो एक जगह अपनी कंट्री को छोड़कर वो दूसरी कंट्री चले जाते हैं. Okay, now ये दो सिचुएशन में होता है. Some migrants
मूव वॉलेंटियरली मतलब अपनी इच्छा से, अगर मैं अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री अपनी इच्छा से चली जाऊं, सो दैट विल बी अ वॉलेंटरी माइग्रेशन इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि पढ़ने के बाद लोग, हायर डिग्रीज लेने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, है ना, यूएस चले जाते हैं। सो वो यूएस क्यों चले जा रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो इस चीज को वॉलेंटरी माइग्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कि उन्होंने वॉलेंटरी अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से माइग्रेशन किया इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। Okay, now the second form of migration is others forced to leave their homeland. अब दूसरा फॉर्म क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल को फोर्स किया जाता है कि वो अपने होमलैंड को छोड़कर चले जाए, सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ माइग्रेशन। इस दो तरीके का होता है, ठीक है। फोर्स क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। अगर अगर उस कंट्री में पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, टर्मोइल मतलब उथल पुथल, ठीक है, पॉलिटिकली सारी चीजें उथल पुथल हो रही हैं, सो वो उस कंट्री में नहीं रह पा रहे हैं, उन्हें मजबूरी में दूसरी कंट्री जाना पड़ रहा है, या देयर इज परसिक्यूशन और वॉर, या फिर वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कंटिन्यूअसली उनकी कंट्रीज इंगेज है वॉर में और वो वहां पर नहीं रह पा रहे हैं। So in that case they had to leave their country, right? और what do we mean by persecution मतलब कि अगर उन पर अत्याचार हो रहा है, what is happening, अगर उन पे क्या हो रहा है बच्चा, अत्याचार हो रहा है, so they will also leave their country. Is it clear? यहाँ तक आपको क्लियर है कि why, हाँ, किस किस सिचुएशन में वो लोग अपनी कंट्री को छोड़ेंगे, या तो वो स्वेच्छा से छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, दैट वुड बी वॉलेंटरीली एग्जिट, दैट वुड बी वॉलेंटरीली माइग्रेशन, ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, या तो उन्हें फोर्स किया जाएगा अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए जब उनके कंट्री में सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें वो रह पाए, जैसे कि उनपे या तो अत्याचार किया जा रहा है, या उनकी कंट्री वॉर में एंगेज्ड है, या वहां पर पॉलिटिकल उथल पुथल आ चुका है, ओके, and have left their country to seek asylum elsewhere। और उन्होंने क्या किया है, अपनी कंट्री को इस केस में छोड़कर दूसरी जगह असाइलम, दैट मीन्स एक छत की खोज में वो चले जाते हैं, दैट इज द अदर केस, ओके। Moving ahead, what are the causes of migration? Now I hope आप समझ गए होंगे कि what is migration, migration होता क्या है। Now we will do what are the causes, किस वजह से माइग्रेशन की जाती है in detail, okay? Now people migrate for different regions। अभी हम लोगों ने दो रीजन्स देखे, सो वैसे ही लोग अलग अलग रीजन्स के वजह से माइग्रेट करते हैं। Some migrate for economic reason, some for social reason, for some for political and environmental। सो अगर हम अपने कॉजेस को कि क्यों लोग माइग्रेट करते हैं, इसे डिवाइड करने की कोशिश करें, इसे क्लासिफाई करने की कोशिश करें, सो वी विल क्लासिफाई इट इनटू इकोनॉमिक रीजन की इकोनॉमिक वजह से, दूसरा अगर हमारा हो जाएगा सोशल रीजन, हमारा तीसरा हो जाएगा पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, या फिर हमारा लास्ट हो सकता है इन्वायरमेंटल रीजन बच्चा। सो अभी हमने जो रीजंस किए थे कि एक लोगों को फोर्सफुली भगाया जा सकता है या फिर एक लोग वॉलेंटरीली जा सकते हैं, वो कारण हो सकता है ना, उसका डिटेल्ड वजह क्या होगी, फोर्सफुली भगाने का भी डिटेल्ड वजह क्या होगी वो भी हम लोग करेंगे। सो व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमिक माइग्रेशन, क्या होता है इकोनॉमिक माइग्रेशन में, दैट पीपल टू फाइंड वर्क, when people are moving to find work, pursue a particular career, that is known as economic migration। मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को सीख करने के लिए जब अ पर्सन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस, अगर एग्जाम्पल है ये जस्ट कि अगर कोई पर्सन इंडिया से यूएस या इंडिया से चाइना जा रहा है इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, in order to have a particular career, so उसे हम लोग इकोनॉमिक माइग्रेशन कहते हैं, ओके।
Now moving ahead, the second is the social migration. दूसरा हमारा क्या है? Social migration, जिसका मतलब है moving to be closer to family and friends or for better quality of life. जब हम लोग सोशल रीजन से, बच्चा, या तो हो सकता है कि मेरी आधी फैमिली यूएस में बसी हो और मैं अभी इंडिया में हूँ, सो मैं क्या करूंगी, कुछ टाइम के बाद मैं भी यूएस चली जाऊंगी. सो दैट इज टू लिव closer to my family and friends, so and to have a better quality of life. अगर किसी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें एक बेटर क्वालिटी लाइफ की नहीं मिल रही है, सो वो क्या करेंगे, वो वहां चले जाएंगे in order to have a better quality of life. Okay, now the third is the political migration. थर्ड क्या है हमारा? पॉलिटिकल माइग्रेशन है, जिसमें मूविंग टू escape wars and political persecution. मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल रीजन से अच्छा बचा, जैसे कि अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकली वो वॉर्स में इंगेज है और या फिर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, पॉलिटिकली दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. हो सकता है कि किसी कंट्री में किसी सेक्शन ऑफ पीपल के साथ अत्याचार हो रहा हो, उनको उनको नहीं रिगार्ड किया जा रहा हो, उनको सारी नेसेसिटीज उनकी नहीं फुलफिल की जा रही हो, सो उन्हें पॉलिटिकल परसिक्यूशन बोलते हैं, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना बोलते हैं, पॉलिटिकली अत्याचार करना बोलते हैं. सो इस केस में भी लोग अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री चले जाते हैं. Okay, and the last is the environmental region, that is moving away from an area due to natural disasters like earthquake and volcanic activities. जैसे कि अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर किसी को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? environmental cause बोलते हैं. environmental cause की वजह से वो माइग्रेशन कर रहे हैं. जैसे कि अगर किसी के एरिया में अर्थक्वेक आ गया है, ओके, समझ लो ये हमारी इंडिया है, ओके, सो यहाँ पर हमारा तिब्बत है. तिब्बत में जो बॉर्डर के पास लोग रह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने फेस किया अर्थक्वेक, तो वो क्या करेंगे, वो जल्दी से बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे और इधर सेफ्टी के लिए आ जाएंगे. सो दिस इज नोन एज environmental migration. I would like to say good evening to Dharmavir Kumar. Thank you so much for visiting my channel, sir. Now moving ahead, now these causes can be classified into push and pull factors of migration. ये जो हमने causes of migration किया, ये क्या है? ये एक सीरीज है पुश और पुल फैक्टर का, कि कुछ पुश और पुल फैक्टर्स काम करते हैं in these migration. So the causes of migration are the series of push and pull factors. Now what are these push and pull factors? Now those factors either forcibly push someone into migration or attract them. आप समझो कि क्या हो सकता है, या तो कोई माइग्रेशन की तरफ किसी को धक्का मार सकता है, पुश कर सकता है, या फिर कोई कंट्री अपनी तरफ पुल कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है. समझ रहे हो? अगर माइग्रेशन मतलब क्या हुआ, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री जाना, ठीक है. हो सकता है कि अपनी कंट्री में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए हो सकता है अपनी कंट्री में पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए हो, इसके वजह से उसको कंट्री से पुश किया गया है इनटू माइग्रेशन, forcefully push किया गया है into migration. That is known as forceful migration or the push factor of migration. Now दूसरा क्या हो सकता है, जैसे यूएस बहुत लोग जाते हैं. Now US is not pushing, और US हम लोग नहीं पुश कर रहे हैं इंडिया के लोग कि आप जाओ यूएस जाओ, हम लोग पुश करके निकाल रहे हैं लोगों को, नहीं. Rather US is attracting people because of the economic benefits, because of the economic opportunity that country provides, right? Good evening, Nitya Raj. Good evening, Bacha. Thank you so much for joining in. Now, moving ahead, what is actually the push factor? Push factor आखिर होता क्या है? Push factor आप समझ गए, जब हमारी कंट्री फोर्सफुली पुश करेगी बाहर जाने को. ये कब कर सकती है? अभी हम लोगों ने कॉजेस किया, या तो पॉलिटिकल सिचुएशन में कर सकती है बच्चा, जब क्या हो रहा है, वॉर हो रहे हैं, परसिक्यूशन हो रहा है,
है ना, इस सिचुएशन में कर सकती है, पुश कर सकती है कि वो बाहर जाए, या तो इन्वायरमेंटल सिचुएशन में कर सकती है कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन में अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, फ्लड आ गया, इस सिचुएशन में जो पॉपुलेशन है उसे पुश किया जा रहा है कि कंट्री छोड़ के वो दूसरी कंट्री चले जाए। नाउ व्हाट इज पुश फैक्टर? पुश फैक्टर इज द फोर्सफुल फैक्टर, फोर्सफुल, जबरदस्ती फोर्स लगाया जा रहा है related to country or the place the people is migrating from. So कहां से पुश लगाया जा रहा है बच्चा? जैसे कि अगर ये एक कंट्री है जिसपे हमारा घर है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरी कंट्री है, सो अगर मेरी कंट्री से इस घर में पुश फैक्टर लगाया जा रहा है, सो ये क्या होगी, ये चलते चलते दूर, ये कहाँ चली जाएगी, ये इस कंट्री चली जाएगी, right? So this is because of the push factor. Okay, now forceful force लगाया जा रहा है, for push factor forceful factor है that forces people to move voluntarily, कि उसे फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी इच्छा के हिसाब से यहाँ से पुश बाहर चले जाओ, अपने दूसरी कंट्री चले जाओ। Is it clear? Because the people risk something if they stay. क्योंकि अगर लोग स्टे करेंगे तो वो किसी चीज का रिस्क लेंगे। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन में वो स्टे करेंगे तो उनकी लाइफ पर रिस्क है बच्चा, वॉर हो सकता है, वॉर में उनको कुछ हो सकता है, परसिक्यूशन का रिस्क है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी दे आर रिस्किंग देयर लाइफ, क्योंकि अर्थक्वेक आ चुका है, वोल्केनो आ चुका है, सो दे आर रिस्किंग देयर लाइफ। ओके, now moving ahead, the push factor is the negative factor. Push factor क्या है? एक negative factor है associated with the current place or the nation or the peoples or the people reside. ये एक negative factor है। Why do we call it a negative factor? क्योंकि खुद की ही country, because of the situation in that country, they are pushing the people away from the country. So ये एक negative factor है कि जरूर उस कंट्री में कुछ गलत चीजें, कुछ ऐसा करंट सिचुएशन जो उस कंट्री का है वो सही नहीं है, इस वजह से ये पुश फैक्टर काम करता है। इज इट क्लियर? I hope it is. बच्चा please write down कि is it clear or not. Now moving ahead, push factor includes, कब push factor लगाया जाता है कंट्री से? जब there is a conflict या फिर civil war. Now you know what civil war is. जब the people of a country fight among themselves, अगर इंडिया के अंदर के लोग आपस में ही लड़ने लगे, सो दैट विल बी अ सिविल वॉर। सो अगर किसी कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर है, सो वहां के लोग पुश होते हैं कि वो बाहर जाके रहने लगे। लैक ऑफ इन अपॉर्चुनिटीज, अगर वो कंट्री सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही है, वो कंट्री पुअर है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रही है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, राइट। नाउ फियर ऑफ टॉर्चर एंड मिसट्रीट, अगर वो कंट्री क्या कर रही है, टॉर्चर कर रही है या मिसट्रीट कर रही है, सो उस केस में भी इसे पुश फैक्टर काम करता है। समझ रहे हो? टॉर्चर कर रही है या फिर उसके साथ मिसट्रीट, मिसबिहेवियर उसके पॉपुलेशन के साथ किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप है अगर वहां पर, तो वहां पर हमें क्या काम करता है, पुश फैक्टर काम करता है। नाउ रैडिकल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, अगर यहाँ पर क्या है, रैडिकल या फिर कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, अगर कि कोई कंट्री आपस में कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या फिर रेशियल, रैडिकल नहीं बचा, रेशियल, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रही है। समझ लो, अगर एक कंट्री है उसमें अलग अलग पॉपुलेशंस रह रहे हैं, अलग अलग रेस के लोग रह रहे हैं, ठीक है, ए रेस के लोग रह रहे हैं, बी रेस के लोग रह रहे हैं, सी रेस के लोग रह रहे हैं ना। जो गवर्नमेंट है वो ए को सपोर्ट कर रही है, बी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सी को नहीं सपोर्ट कर रही है, सो ये क्या हो जाएगा, रेशियल या फिर कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। लाइक अगर समझ लो एक कंट्री है जिसमें हमें बिहार के लोग मिले, बंगाल के लोग मिले, असम के लोग मिले, okay, now the politics is supporting Bihar ke log, the politics is supporting Bengal ke log, but the politics is not supporting Assam ke log, so ये क्या हो जाएगा, इनके कल्चर के खिलाफ जाना, so इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, so इन्हें फोर्सफुली यहाँ से जाना पड़ेगा। Now not being able to practice religion or religious intolerance, अगर किसी कंट्री में कोई पर्टिकुलर धर्म को नहीं प्रमोट करने दिया जा रहा है, समझ लो एक कंट्री है जहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन पीपल हैं, और इसमें क्या है, बुद्धिस्ट पीपल हैं,
सब पीपल है, ठीक है। अब इस कंट्री में क्या है, ये लोग रिलीजियस इंटॉलरेंट है, समझ लो ये क्या है, ये एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और ये बुद्धिस्ट को नहीं चाहती है अपने कंट्री में, या ये सिख को नहीं चाहती अपनी कंट्री में। सो ये क्या हो जाएगा, ये इसके वजह से इन्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा और ये इसे लीव करके चले जाएंगे। ओके, इट कैन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ क्रिश्चियन या फिर मैं बोल रही हूँ कि बिहार और बंगाल को सपोर्ट किया जाएगा। दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल बच्चा। I would like to say good evening to Jitendra Kumar. We are discussing chapter number 4 of 8th standard, that is migration. Thank you so much for visiting in. Now the other factors can be droughts, famine and a natural disaster. मैंने बोला था environmental factor हो सकता है, अगर वहां पर सूखा पड़ गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, या फेमाइन भूखमरी आ गए हैं, खाने को नहीं है, या अदर नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, या फिर फ्लड आ सकता है। सो इन सारी चीजों के वजह से लोगों को फोर्सफुली वहां से जाना पड़ता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर, द कंट्री पुश कर रही है बाहर जाने के लिए। अगर शॉर्टेज ऑफ फूड हो चुका है, पुअर मेडिकल केयर है वहां पर, या फिर लॉस ऑफ वेल्थ हो चुका है, किसी कंट्री में बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वेल्थ हो चुका है, उनका गरीब हो चुके हैं वो पर्टिकुलर इंसान, सो वो क्या करेंगे, चीपर कंट्री में हो सकता है मूव कर ले ना। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन ऑफ पीपल हु क्वेश्चन ना, अगर वहां पर पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है, समझ लो अगर हमारा पॉलिटिकल लीडर ए पार्टी से है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी पार्टीज है, बीजेपी है, हमारे पास कांग्रेस है, हमारे पास अलग अलग तरीके की पार्टी है, राइट। गुड इवनिंग अंकिता महतो, थैंक यू सो मच बच्चा फॉर ज्वाइनिंग इन, ठीक है। सो समझ लो कि एक कंट्री में ए पार्टी कहाँ है, पावर में है, ये ए पार्टी कहाँ है, पावर में है। अब ये क्या है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंट है, इसका मतलब अगर कोई भी इस पार्टी के खिलाफ बोलता है तो वो उसे क्या करती है, वो उसे टॉर्चर करती है, या फिर उसे जेल भेज देती है, या फिर वो क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है लोगों पे कि कोई भी इनके खिलाफ ना बोले। whoever question these parties, they persecute the people. so इस केस में भी ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ इस कंट्री में नहीं रहना चाहेंगे और ये दूसरे कंट्री में जाना चाहेंगे। Is it clear? Now moving on to the pull factor. Moving on to the pull factor. Pull factor क्या काम करता है ना, pull मैंने बोला, pull मतलब खींचना। So this is related to the country or the place of a person migrates to the destination country. Now समझो कि अगर एक कंट्री बच्चा पुश कर रहा है, अगर एक कंट्री पुश कर रहा है तो दूसरा कंट्री क्या करेगा, पुल करेगा अपने तरफ, अपने तरफ पुल करेगा। सो यहाँ जो हमारी होमलैंड है वो पुश करती है, होमलैंड क्या करेगी, पुश करेगी, फोर्सफुल फोर्स देगी बाहर जाने के लिए। और जो हमारा डेस्टिनेशन लैंड है, जिस भी कंट्री में हम लोग जाके लैंड करते हैं, वो हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए हम वहां जाके रहते हैं। नाउ दिस इज अ निगेटिव फैक्टर, ये जो हमें पुश कर रही है ये क्या है, एक निगेटिव फैक्टर है, और जो हमें अट्रैक्ट कर रही है वो एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। ओके या फिर दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि उस कंट्री में जरूर कुछ ऐसा होगा जो वहां पर लोग अट्रैक्ट होकर चले गए, बिकॉज दैट अट्रैक्ट पीपल टू लिव देयर, टू लीव देयर होम। क्योंकि ये कंट्री क्या कर रही है, अगर इंडिया से लोग यूएस जा रहे हैं, सो इंडिया से क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना। और दूसरी बात कि यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यूएस क्या करता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देता है, इसलिए ये अट्रैक्ट करता है लोगों को कि वो अपनी कंट्री को छोड़कर मेरी कंट्री में आकर रहे। इज इट क्लियर? मूविंग अहेड, व्हाट आर द पुल फैक्टर्स, किस वजह से पुल फैक्टर काम करता है। अगर बेटर जॉब या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फर्स्ट थिंग एकदम ये क्लियर है, अगर दूसरी कंट्री बेटर जॉब दे रही है आपको आपके क्वालिफिकेशन के लिए, आप चले जाओगे दूसरी कंट्री। अगर वहां पर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल रही है, आप इतना कमा पा रहे हो कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो पा रहे हो, सो आप वहां चले जाओगे। अगर वो कंट्री बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स दे रही है, अगर आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री में जाकर अच्छा हो जाता है, सो लोग चले जाते हैं। बेटर मेडिकल केयर है, इंजॉयमेंट है उस कंट्री में, क्वालिटी एजुकेशन वो कंट्री देती है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी है,
इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी है, ना केवल इकोनॉमिक बचा बट ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी है। वहां पर कोई भी लोग ऐसा नहीं है, रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस नहीं है, कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट या फिर अत्याचार नहीं कर रहा है। सो इस केस में लोग अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं। नाउ देयर कैन बी पॉलिटिकल फ्रीडम, वहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम है। फैमिली लिंक है, हो सकता है कि अगर अगर मेरी फैमिली चाइना में, मेरी एक फैमिली का कुछ लोग चाइना में रहते हैं, सो मैं यहाँ पर इंडिया में रह रही हूँ, बी मैं, मेरी फैमिली बी है, मैं इंडिया में रह रही हूँ, सो क्योंकि मेरे यहाँ पर लिंक है तो मेरे लिए यहाँ जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो फैमिली लिंक्स की वजह से भी लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं ना। पोस्ट रिटायरमेंट कंफर्ट्स एंड बेनिफिट्स, और या फिर रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे के लिए वो कंट्री ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा सुटेबल लग रही है, सो तब भी लोग उस कंट्री चले जाते हैं। Is it clear? Now with this we have come to the end of this session. Thank you so much all of you for joining in. I have come to the end. We have come to the end of this session. Thank you so much for being so kind and patient throughout my session. And I will soon be uploading B part of this particular chapter. And also, if you have anything to say, you can always reach out to me through my comments. If you want me to anything, any chapters you want me to pick up. Now geography जो मैं सेशन लेकर आई हूँ, it was on a popular demand that people were asking for this chapter. That's how I have brought this. So आप भी मुझे reach out कर सकते हैं. I bring sessions on English, I bring sessions on maths, I bring sessions on history, geography, civics, and biology. So any paper do you face any kind of difficulty, so आप मुझे reach out कर सकते हैं with the chapter's name, and I will make sure कि मैं आपके लिए वो session लेकर आऊँ. Thank you so much each one of you for joining in. Now with this I will take a leave.